respected Prime Minister, distinct opposition leaders, and esteemed members and the dignitaries present. It is my honor to inaugurate the Youth Parliament 2024 Edition 4 in Scholars Valley International School, Sitarganj, a platform where ideas meets action and voice shape the future. Today, we deliberately talk on about the crucial matters of education and the reforms about it. Let us remember that our discussion here reflects the aspiration of millions of young minds. With this, I officially declare the Youth Parliament 2024 session open. Let the voices of tomorrow echo loud and clear. Thank you. Honorable members, Honorable Speaker. Honorable Prime Minister, respected opposition leader, esteemed member of Parliament Ministry and all the dignitaries present here. मैं आज आप सभी का यूथ पार्लियामेंट 2024 के इस ऐतिहासिक सत्र में स्वागत करती हूँ. It's a privilege to stand here today as we embark the journey of constructive dialogues and meaningful deliberation. Now, before we begin the session, let us take a moment on reflecting India's one of the greatest achievements of 2023. On August 23, Chandrayaan-3 mission launched by ISRO successfully landed on the moon, making India proud and the first nation to be landed on moon's south pole. यह उपलब्धि तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई ताकत को दर्शाती है. It reminds us that with determination and innovation, no goal is too far and no dream is too big. This is the time to take the oath or affirmation of newly elected member. I'll request to General Secretary, please proceed. Srimati Manvi Bhatt, elected from Almora, Uttarakhand, will now take oath or affirmation. Srimati Manvi Bhatt, please. Madam, would you like to take oath or affirmation? Oath, madam. And in which language would you like to take oath, madam? In Hindi, madam. मैं मानवी भट्ट ये शपथ लेती हूँ कि मैं अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगी. मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मेरे सभी निर्णय देश और समाज के हित में हों. मैं शिक्षा, समानता और संविधान की मूल भावना को सशक्त करने के लिए सतत प्रयास करूंगी. मैं भूमिका को देश के युवाओं के भविष्य के लिए समर्पित करती हूँ. धन्यवाद. Mr. Utkarsh, elected from Pithoragarh, Uttarakhand, will now take oath or affirmation. Mr. Utkarsh, please. Sir, would you like to take oath or affirmation? Oath, madam. And in which language would you like to take oath, sir? In English, madam. I, Utkarsh Solmanli, affirm that I will fulfill my duties with honesty, transparency, and I pledge to work for the betterment of society and uphold the principle of education, equality, and the Constitution of India. I dedicate myself to the progress of youth and nation as a whole. Thank you.
Now, before we proceed further, we will observe a condolence session for the unfortunate demise of Sri Arun Kumar. He was a dedicated member of Parliament Assembly. He passed away on November 15, 2023. He was known for his humanity and vision for betterment of society. Now I request our Honorable Prime Minister, please stand and say a few words for the Satellite device. माननीय अध्यक्ष महोदया, 15 नवंबर 2023 को हमने एक ऐसे महान नेता को खो दिया जो सादगी, दूरदर्शिता और समर्पण का प्रतीक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने और ग्रामीण भारत को सशक्त करने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिए। उनकी नीतियों ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ और उनके विचार आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। मैं आशा करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়া, আজকেরা অরুণ কুমার আমাকে বিস্তারে নেই আর उनार कमी क्यों पूरा करते पारबे ना। उन्होंने शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए जो कार्य किए हैं वो आने वाले पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक रहेंगे। मैं मेरे साथियों की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कठिन समय में ईश्वर उनके परिवार को इस कठिन समय में झेलने की शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति मिले। Now, I request to all of the members sitting here, please stand and observe 2 minutes silence to honor his achievement. Thank you, members. Now I request our Honorable Prime Minister to introduce his new minister. It's my pleasure to introduce the minister to the House, Education Minister Ms. Sanpreet Kaur. Minister of Education Policy Mr. Vansh Maji. Now I request to our General Secretary, please distribute today's agenda and question for the session. So let us proceed today's question session. Question number 101, Ms. Sahajpreet Kaur, please. माननीय शिक्षा नीति मंत्री जी, एनईपी 2020 के साथ हम भविष्य में बदलाव का सपना देखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कब तक? क्या यह योजना भी उन सरकारी नीतियों की तरह है जो सिर्फ फाइलों में दफन हो जाती है? नीति तो बनी बड़ी गुड़, पर लाभ कब मिले इस मूलभूत जमीन पर कब यह साकार होगी या सिर्फ एक और सरकारी प्रचार होगी? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत एनईपी 2020 की हर सिफारिश को लागू करने की क्या गारंटी है और इससे जुड़े ग्राउंड लेवल चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार की क्या ठोस योजना है? धन्यवाद। Minister of Education Policy, please. माननीय अध्यक्ष महोदया और मेरे साथियों, आज मैं जिस विषय पर बोलने का सौभाग्य पा रहा हूँ वह केवल हमारी शिक्षा का विषय नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य को दिशा देने का संकल्प भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ये नीति ना ही एक साधन है हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने का, बल्कि यह एक रिवॉल्यूशनरी विजन है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर अवसर और एक सशक्त भारत के निर्माण का आधार बनेगी। एनईपी 2020 के तहत हमने शिक्षा में कई सारे बदलाव किए हैं जिनका असर धीरे धीरे ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है। व्हाट मेक्स एनईपी यूनिक इसकी यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है। पहले की नीतियों में हम केवल मार्क्स ओरिएंटेड थे, लेकिन अब हमारा फोकस लाइफ स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है।
अब आपके सवाल का उत्तर दूं तो ये बदलाव रातों रात नहीं आ सकते। एक बड़े स्तर पर इम्पैक्ट डालने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाना पड़ा है। स्कूलों और कॉलेजों में एनईपी की बुनियाद डालने के लिए सबसे पहले टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग की जा रही है ताकि वे इस नीति को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए तैयार हो। माननीय सदस्यगण, हम जानते हैं कि कोई नीति तभी सफल होती है जब वह समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उसी उद्देश्य से हमने रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं ताकि शहर का विद्यार्थी हो या दूर दराज के गांव के इलाकों का, दोनों को समान अवसर मिल सके। एनईपी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य रीजनल लैंग्वेजेस में भी टीचिंग को प्रमोट करने का है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अब लोकल डायलेक्ट्स में भी टीचिंग को प्रमोट किया जा रहा है ताकि शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी बढ़े। साथ ही एनईपी ने टेक्नोलॉजी को एजुकेशन का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा और स्वयं के माध्यम से स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी रिसोर्सेज मिल रहे हैं जिससे दूर दराज के गांव के इलाकों के बच्चों तक भी बेहतर कंटेंट पहुंचे। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से यह नीति स्टूडेंट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड से जोड़ रही है जिससे फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का निर्माण होगा। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस नीति का लाभ देश के हर छात्र को मिले। उसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ने स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, वोकेशनल ट्रेनिंग और कोडिंग और एआई जैसे सब्जेक्ट्स को लोअर ग्रेड से जोड़ना शुरू कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले। आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आज लगभग देश के हर राज्यों में, विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे राज्यों में एनईपी 2020 के अंतर्गत बदलाव साफ नजर आने लगे हैं। इस नीति से न केवल स्टूडेंट्स की ग्रोथ हो रही है बल्कि हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी को भी इसका लाभ मिल रहा है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एनईपी 2020 एक नीति नहीं है, एक संकल्प है, एक न्यू इंडिया को बनाने का संकल्प। इस नीति के माध्यम से हम न केवल शिक्षा प्रणाली में बदलाव ला रहे हैं बल्कि एक एम्पावर्ड और स्किलफुल सोसाइटी का भी निर्माण कर रहे हैं। हमारा यह विश्वास है कि आने वाले समय में इस नीति का असर हर स्कूल, हर कॉलेज और हर गांव के क्लासरूम में होगा। धन्यवाद। अपोजिशन मेंबर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया और मेरे सम्मानित साथियों, आज जिस एनईपी 2020 की प्रशंसा में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, मुझे अफसोस है कि हमें इसकी असली सच्चाई पर भी बात करनी चाहिए। ये नीति केवल कागजों पर ही सुंदर दिखाई देती है, पर ग्राउंड लेवल पर इसकी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि वास्तविकता में एनईपी के नाम पर हमें जो सपने दिखाए गए थे वो अभी भी सिर्फ सपने ही हैं। एनईपी 2020 को एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी कदम कहा गया है जो भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लेकर जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस नीति ने हमारे शिक्षा तंत्र को भ्रम और असमानता की ओर धकेल दिया है। How is it revolutionary when it lacks basic clarity on implementation? रूरल एरियाज में जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट नहीं पहुंच पाया, तो वहां डिजिटल लर्निंग की बात करना का तर्क संगत है। माननीय सदस्यगण, इस नीति में कहा गया है कि शिक्षा को रीजनल लैंग्वेजेस में प्रदान किया जाएगा ताकि सबको इक्वल एक्सेस मिले। पर जरा सोचिए, क्या इससे अर्बन और रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के बीच की खाई और गहरी नहीं हो जाएगी? जहां एक तरफ हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और कंपटीशन की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा को रीजनल लैंग्वेजेस में प्रदान करने से क्या हमारे देश के बच्चे इस ग्लोबल कंपटीशन में टिक पाएंगे? Is this not creating a divided system where some will be more prepared than others? और अगर स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की बातें करें तो क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जॉब मार्केट्स में रियल डिमांड क्या है? सिर्फ कोडिंग और वोकेशनल स्किल्स की बातें करना और स्टूडेंट्स को उन फील्ड्स में पुश करना क्या इनफ है? ये सब एक फैंसी विजन है, इससे कोसों दूर है। साथियों, एनईपी 2020 में फोकस होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसे देश में बेसिक लिटरेसी ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। जिस देश में हर साल लाखों बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, देश में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें करना एक मजाक जैसा लगता है। और सबसे बड़ी विफलता तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है।
NEP 2020 के गोल्स और इसके एग्जीक्यूशन के बीच में कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। कौन देखेगा कि पॉलिसी के नाम पर वर्क हो रहा है और कितना पेपर वर्क हो रहा है? अगर इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होती तो क्यों आज भी हमारे देश के कुछ राज्यों में शिक्षा की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है? अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, NEP 2020 एक अधूरा सपना है जो केवल एक ख्वाब है। अगर हम अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को सच में सुधारना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो देश के हर नागरिक, हर स्टूडेंट, हर बच्चे तक पहुंचे, जो रियल लाइफ चैलेंजेस को एड्रेस करे, ना कि इन बुक्स में कन्फाइंड होकर रह जाए। ये नीति तब तक सिर्फ एक फैकेड है जब तक इसे प्रैक्टिकल, इंक्लूसिव और अकाउंटेबल अप्रोच से लागू नहीं किया जाता। धन्यवाद। Miss Sahaspreet, do you have any supplementary question? यस मैम। Please ask. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार NEP 2020 को क्रांतिकारी बता रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा और शिक्षकों की कमी अभी भी बड़ी समस्या है। क्या सरकार बताएगी कि इन चुनौतियों से लड़ने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। Concerned minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा और स्वयं के माध्यम से शिक्षा की पहुंच बढ़ा रही है। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से धनराशि आवंटित की गई है। हमारी यह प्राथमिकता है कि देश के हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। धन्यवाद। Question number 102, Miss Kiran Kaur, please. गांव में शिक्षा का हाल अभी भी बदतर। क्या योजना का सार है बंटवारा कागज पर? नालंदा की भूमि पर ये विडंबना क्यों बनी? ग्रामीण शिक्षा की कथा अधूरी क्यों सुनी? माननीय ग्रामीण शिक्षा मंत्री जी, सर्व शिक्षा अभियान और डिजिटल इंडिया जैसे पहलों के बावजूद क्या रूरल स्कूल्स में टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन का सपना सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा? कृपया बताइए, इन योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर लागू करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है और उनका समाधान क्या है? धन्यवाद। Minister of Rural Education, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ग्रामीण की उन चुनौतियों की ओर ले जाना चाहती हूँ जिनका समाधान सरकार ढूंढ रही है। हम सभी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जैसे कार्यक्रम का प्रकाश हर गांव, हर बच्चे तक पहुंचाने का संकल्प है। Education is a light that dispels the darkness of ignorance. इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा अभियान का लक्ष्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, पर इन प्रयासों के बावजूद हमें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली चुनौती बुनियादी ढांचे का अभाव। हमारे ग्रामीण स्कूलों में अभी भी प्राप्त क्लासरूम्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज और बेसिक टीचिंग रिसोर्सेज की कमी है। बिना एक मजबूत और आधारभूत संरचना के क्वालिटी एजुकेशन देना मुश्किल हो जाता है, पर इसके लिए सरकार ने बजट आवंटन बढ़ाने और विशेष फंड जारी करने का काम किया है। किस विशेष फंड्स की बात कर रहे हैं हम? अभी तक हमने कोई भी विशेष फंड्स देखे नहीं है जो सरकार ने लागू किए हों। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जी स्पीकर मैडम, सॉरी। ताकि स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सके। दूसरी प्रमुख चुनौती है क्वालिफाइड टीचर्स की कमी। हमारे ग्रामीण स्कूलों में अच्छे और ट्रेन टीचर्स की भारी कमी है, जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में एक बाधा है। Many teachers hesitate to work in remote areas due to lack of resources and facilities. इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंसेंटिव्स और बेहतर सुविधाओं का प्रावधान किया है, ताकि अधिक शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तीसरी बड़ी चुनौती है इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल डिवाइड। डिजिटल शिक्षा रूरल एजुकेशन में गेम चेंजर हो सकती है, पर उपकरणों और इंटरनेट की कमी के कारण कई छात्र इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सरकार का पीएम वाणी योजना और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जैसे प्रयास इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, ताकि डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो।
महोदया, साथ ही हमें लैंग्वेज बैरियर का भी सामना करना पड़ता है। देश के विभिन्न हिस्सों में रीजनल लैंग्वेजेस का प्रचलन है, जिससे एक सेंट्रलाइज्ड करिकुलम लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सरकार ने रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंटेंट उपलब्ध करवाना शुरू किया है, ताकि हर बच्चा अपनी भाषा में आसानी से पढ़ सके। महोदया, अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, ये चुनौतियां हमें रोक नहीं सकती। हम रूरल एजुकेशन को संसद करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं, ताकि हम चाहे जितना भी दूर कोई बच्चा हो, क्वालिटी एजुकेशन पा सके। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन, और हमारी सरकार इस दिशा में दृढ़ संकल्पित है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Opposition member, please. हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छी कर दी, पर अफसोस कि इसकी कोशिश हमें कहीं दिखाई नहीं देती। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं रूरल एजुकेशन पर सरकार की योजनाओं के उस कड़वे सच को उजागर करना चाहती हूँ, जो शायद कागजों पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में सिर्फ एक छलावा बनकर रह गया। हम समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जैसी पहलों का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन जरा ग्राउंड रियलिटी की तरफ भी देख लीजिए। क्या इन योजनाओं ने वाकई में हमारी ग्रामीण शिक्षा को उस स्तर तक पहुंचाया है जैसा कि वादा किया गया था? नहीं महोदया, क्योंकि सच तो यह है कि हमारी शिक्षा नीतियां सिर्फ कागजों पर ही सपनों के मीनारे खड़े करती हैं, परंतु धरातल पर ये सिर्फ एक अधूरे बातों का जंगल बनकर रह जाती है। हमें ये मान लेना चाहिए कि डिजिटल इंडिया जैसे फैंसी स्लोगन हमारे रूरल एजुकेशन में कोई चमत्कार नहीं ला पाए हैं। जिन गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जहां क्लासरूम्स का अभाव है, सैनिटेशन का नामो निशान नहीं है, वहां ये योजनाएं किस काम की? और ये बात करते हैं क्वालिफाइड टीचर्स की, तो ये भी एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह गया, क्योंकि सरकार हर साल गवर्नमेंट टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम का दावा तो बड़ी उम्मीद से करती है, पर इनमें से कितने ऐसे टीचर हैं जो वाकई में रिमोट एरियाज में जाकर पढ़ाने के लिए तैयार हैं? महोदया, ट्रेनिंग से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ सकती कि जब तक ग्राउंड पर टीचर की उपस्थिति और उनकी डेडिकेशन नहीं हो। और फिर आते हैं हमारे बहुप्रशंसित डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव पर, जिसकी असली हकीकत तो आप गांव में जाकर देखिए। कनेक्टिविटी के नाम पर रूरल स्टूडेंट्स के पास सिर्फ नाम के ही इंटरनेट है, और डिवाइसेस उसका तो कहना ही क्या। क्या ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग सिर्फ शहरों के ही बच्चों का हक है? अगर रूरल चिल्ड्रंस इस देश का भविष्य है, फिर उनके लिए इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस एक्सेसिबल क्यों नहीं है? महोदया, मिड डे मील योजना का बखान किया जाता है कि इससे अटेंडेंस में सुधार आया है। चलो मान लेते हैं, पर क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार आया है? नहीं। भूखे पेट शिक्षा नहीं होती, पर सिर्फ भोजन से ही ज्ञान नहीं होता। सरकार को ये समझना होगा कि मिड डे मील सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो तब होगा जब हमारे स्कूल्स में अच्छी शिक्षा और अच्छे रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। महोदया, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज बैरियर्स की, तो जस्ट रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट उपलब्ध कराने के नाम पर बस एक फकेर खड़ा किया गया है। क्या रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ने के बाद हमारे रूरल स्टूडेंट्स ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में टिक पाएंगे? नहीं। महोदया, देश के किसी भी कोने का बच्चा क्यों ना हो, उसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का अधिकार होना चाहिए। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि हमारी ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति गवर्नमेंट पॉलिसीज के खोखले वादों का जीता जागता उदाहरण है। छोटी छोटी सीख कर ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं, और जब तक हमारी सरकार उन छोटी छोटी सीख और असल समस्याओं पर ही काम नहीं करेगी, रूरल एजुकेशन तो बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक नारा नहीं, हर बच्चे का हक होना चाहिए। धन्यवाद। Miss Kiran, do you have any supplementary question? No, ma'am. Question number 103, Mr. Sarthak Vish, please. माननीय प्रतियोगिता शिक्षा मंत्री जी, कौन समझे छात्रों की पीड़ा जो बन गई है मशीन की कीड़ा? प्रेशर कुकर बन गई है शिक्षा, क्या यह है हमारी उपलब्धि की दिशा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के माध्यम से फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होने की बात होती है,
लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाले छात्रों के लिए एक्सेसिबल रिसोर्सेज देने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम छात्रों के स्वरूप मानसिक स्वास्थ्य बनाने का क्या विचार किया गया है? धन्यवाद। Minister of Competitive Exam, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ही नहीं होता है, बल्कि उनके सपनों और करियर का भी आधार होता है। और इसके साथ ये भी सच्चाई है कि इन एग्जाम्स का प्रेशर और कंपटीशन कई छात्रों के लिए मानसिक और शारीरिक चुनौती बन जाता है। इसी समस्या को समझते हुए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनसे न केवल ये एग्जाम्स एक्सेसिबल बल्कि स्टूडेंट फ्रेंडली भी बन सके, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए। सरकार का पहला उद्देश्य रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर वर्ग के छात्रों के लिए सुलभ हों। इसी दृष्टिकोण से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की स्थापना की गई है, ताकि एक स्टैंडर्ड और ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग प्रोसेस सुनिश्चित किया जा सके। इससे न केवल एग्जाम्स की रिलायबिलिटी बढ़ी है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म भी तैयार हुआ है। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स की सहायता के लिए सरकार ने स्कॉलरशिप स्कीम्स और फी वेवर्स का भी प्रावधान किया है। दीक्षा, स्वयं और ई पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेसिबल हुआ है। माननीय सदस्यगण, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कठिनाइयों को समझते हुए सरकार ने करिकुलम में भी बदलाव किए हैं। Our aim is to help students learn smartly, not just study hard. अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार का उद्देश्य केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उचित बनाना ही नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स की मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। कंपटीशन इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, और हमारा प्रयास है कि ये स्टेप हर स्टूडेंट्स के लिए आसान और उपलब्ध हो। धन्यवाद। Opposition leader, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हकीकत को सामने रखना चाहता हूँ। एक ऐसी हकीकत जो कागजों पर तो उज्जवल दिखाई देती है, लेकिन असल में भ्रष्टाचार, दबाव और टूटे हुए सपनों से भरी हुई है। हम कह तो देते हैं कि यह एग्जाम स्टूडेंट्स के भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन आज ये एग्जाम्स का क्षेत्र उन लाखों छात्रों के लिए एक स्कैम बैटलफील्ड बन गया है, जहां उनके मेहनत की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसे और पावर से ही सक्सेस खरीदी जा सकती है। नीट स्कैम की बात करें तो हाल ही में सामने आए स्कैम ने यह साफ कर दिया है कि इस देश में एग्जाम इंटीग्रिटी का कोई मोल नहीं बचा है। NTA जैसे संगठन, जिन्हें स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित करना था, आज उन्हीं के भरोसे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। इस नीट के पे फॉर रैंक स्कैम में क्या देखा हमने? पैसे देकर छात्रों को फेक रैंक्स और फेक स्कोर्स दिए गए, जबकि मेहनत करने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या गुनाह था ऐसे छात्रों का? क्या वे सिर्फ इस गंदे सिस्टम का शिकार बनने के लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे थे? और बात सिर्फ नीट तक ही सीमित नहीं है। हमें एम्स MBBS एडमिशन स्कैम की भी याद दिलानी होगी, जहां सालों पहले सीट्स को इन्फ्लुएंस किया गया सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए। और फिर बिहार टॉपर स्कैम जैसे मामले, जहां पैसों के दम पर स्टूडेंट्स को टॉप रैंक्स दिलाई गई। कैसे यह सिस्टम अब एक सक्सेस फैक्ट्री बन चुका है, जहां बिना क्वालिफिकेशन के भी पैसे और पावर के दम पर सक्सेस खरीदी जा सकती है। और यही नहीं, SSC एग्जाम्स में पेपर लीक की चर्चा कोई नई बात नहीं है। SSC CGL एग्जाम्स में पेपर लीक से लेकर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में भी बार-बार चीटिंग के मामले सामने आए हैं। हाउ मेनी मोर एग्जाम्स विल बी टेंटेड बाय दीज लीक्स? जब हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसे लीक सामने आ रहे हैं, तो हम किस इंटीग्रिटी की बात करते हैं? हमारी सरकार किस फेयरनेस की बात करती है? मैडम स्पीकर, हम दावा करते हैं कि एग्जाम्स एक्सेसिबल है, लेकिन किसके लिए एक्सेसिबल है? एक गरीब परिवार का छात्र जो रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करता है, उसके लिए, या उन लोगों के लिए जो पैसे देकर अपनी राह आसान बना सकते हैं? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना जैसी स्कीम्स की बात तो खूब होती है, लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसे छात्रों को कैसे जूझना पड़ता है, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में खो जाते हैं। स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड जैसे स्टेटमेंट्स तो सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह चुके हैं, क्योंकि इसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। हम स्टूडेंट्स की मानसिक स्थिति की बात करें तो यह सिस्टम बस उन्हें कुचलने का काम कर रहा है।
हर साल हजारों बच्चे इन एग्जाम्स के दबाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई इसके पीछे के कारणों पर ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। हमने मानसिक स्वास्थ्य को अगर सीरियस लिया होता तो आज यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर, ये करप्ट प्रैक्टिसेस और ये बेईमानी उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ नहीं पाते। यह सिस्टम केवल मार्क्स और रैंक्स का भूखा है। यहाँ स्टूडेंट्स के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस की कोई जगह नहीं है। स्टूडेंट्स हर दिन मेंटल हेल्थ इश्यूज और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारी पॉलिसीज सिर्फ कागजों पर फैंसी टर्म्स और प्रोग्राम्स तक ही सीमित है। और मैं बस यही कहूंगा कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सच में बदलाव लाना है तो हमें इस भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को जड़ से उखाड़ना होगा, क्योंकि जब तक यह सिस्टम ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं बन जाता तब तक स्टूडेंट्स की मेहनत ऐसे ही करप्ट प्रैक्टिसेस की भेंट चढ़ता रहेगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो स्टूडेंट्स के मेहनत का सम्मान करे, ना कि उनके सपनों को पैसों के खेल में बेच दे। Question? No, madam. Question number 104, Ms. Rakshita Kanpal, please. माननीय छात्र कल्याण मंत्री जी, शिक्षा बनी जालिम बवंडर, छात्रों के जीवन में हर दिन एक अंधड़, मनोबल गिरा, हताशा बढ़ी, क्या करेंगे आप इस बर्बादी से लड़ी? यहाँ कव्वाली नहीं चल रही है, क्वेश्चन राउंड चल रहा है, कृपया मुद्दे पे आइए। यस मैडम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के रिपोर्ट्स के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ा संकट बन रहा है। क्या सरकार मेंटल हेल्थ काउंसलर्स को स्कूलों में अनिवार्य कराने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रही है? और क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस मुद्दे को गंभीरता से शामिल किया गया है? धन्यवाद। मिनिस्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके ऊपर बढ़ते दबाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि पीयर प्रेशर और एकेडमिक प्रेशर के कारण आज कई छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए कई ठोस कदम उठाए हैं। माननीय सदस्यगण, सबसे पहले सरकार ने स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का आरंभ किया है, जिनका उद्देश्य छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी के साथ हमने टीचर्स और काउंसलर्स को प्रशिक्षण दिया है ताकि वे छात्रों की समस्याओं को सुने और उन्हें साझा कर सके। मैडम स्पीकर, we believe that teachers can play a major role as the first line of support, और यही देखते हुए हमने उन्हें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का हिस्सा भी बनाया है। सरकार ने छात्रों को सपोर्ट देने के लिए काउंसलिंग सेंटर्स और हेल्पलाइंस भी स्थापित किए हैं, जहां की छात्र अपनी समस्याओं को कॉन्फिडेंशियली साझा कर सकेंगे। Today students need a safe space where they can talk about their future without fear, और यही देखते हुए हमारे इन प्रयासों में कॉन्फिडेंशियली और एक्सेसिबिलिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। लाइफ स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस जैसे कई मॉड्यूल्स अब स्कूल करिकुलम का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि छात्र न केवल पढ़ाई में बल्कि मैडम स्पीकर जीवन के हर एक पहलू में मानसिक रूप से सशक्त हो सके। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट मेकिंग रेजिलिएंट इंडिविजुअल। और रही बात पीयर प्रेशर की, तो पीयर प्रेशर से निपटने के लिए हमने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। These activities will make children channel their energy, learn teamwork and handle pressure positively. मैडम स्पीकर, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां कई छात्रों को सुविधाओं की कमी हो रही थी, वहां हमने क्रिएटिव आर्ट्स और स्पोर्ट्स में विशेष रूप से निवेश किया है। इसके कारण छात्रों को एक नया रास्ता, एक खुला आसमान मिल रहा है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हर छात्र को सपोर्टिव और न्यूट्रिटिंग एनवायरनमेंट मिले, ताकि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ सके। इसी के साथ हमने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है, ताकि पेरेंट्स और गार्जियंस को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता चले और वह अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डाले। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि छात्रों का समग्र विकास है। एजुकेशन isn't just about academic success, it's about mental and emotional well-being too. हम इस दिशा में प्रतिबद्ध हैं कि हर बच्चा मानसिक रूप से मजबूत और स्वस्थ हो। धन्यवाद। Opposition member, please.
बच्चों पर दबाव डालकर उनकी प्रतिभा को कुचलना बंद करें, उन्हें उड़ने के लिए पंख दें, बेड़िया नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के सामने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उन पर बढ़ते दबाव की उस असलियत को सामने लाना चाहती हूँ जो शायद सरकार के कागजों में दर्ज योजनाओं से बहुत दूर है। हम बार बार सुनते हैं कि छात्रों को फ्यूचर लीडर्स कहा जाता है, लेकिन क्या कभी हमने इस पर गौर किया कि हम उनके भविष्य को कब और कैसे छीनते जा रहे हैं? जिस प्रेशर और कंपटीशन की आग में हम उन्हें झोंक रहे हैं, क्या यही एक तरीका है उन्हें फ्यूचर लीडर्स बनाने का? पीर प्रेशर और एकेडमिक प्रेशर के कारण हमारे छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं और सरकार ने इसके लिए क्या किया? बस कुछ काउंसलिंग सेंटर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और करिकुलम में कुछ किताबें जोड़ दी। Does anyone really think कि बस इतना करने से उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? क्या सिर्फ काउंसलर्स की नियुक्ति या हेल्पलाइन शुरू कर देने से उनकी मन की दशा ठीक हो जाएगी? माननीय सदस्यगण, स्टूडेंट्स आर ट्रैप्ड इन अ सिस्टम जहां केवल मार्क्स, रैंक्स और अचीवमेंट ही सब कुछ बन गया है। उन्हें हाई एक्सपेक्टेशंस की आग में झोंका जाता है, लेकिन उनकी मन की दशा को समझने का वक्त किसी के पास नहीं है। हर कोई उनसे परफेक्शन की उम्मीद करता है, लेकिन उन पर दबाव का पहाड़ कितना भारी हो सकता है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और सरकार की योजनाओं का आलम यह है कि हर स्कूल में एक काउंसलर की नियुक्ति होगी। एक काउंसलर 1000 से ज्यादा छात्रों की मानसिक स्थिति को सुने और समझे। इमेजिन, एक काउंसलर 1000 से ज्यादा छात्रों की मानसिक स्थिति को सुने, समझे और उसका समाधान करे। क्या ये मजाक नहीं है? Is that how we plan to support mental health? महोदय, आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है। लाइफ स्किल्स के नाम पर नए करिकुलम्स और मॉड्यूल सेट कर दिए गए हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ स्किल्स केवल किताबों में पढ़ने से नहीं आती। जब तक हमारे स्कूल्स का एनवायरनमेंट सपोर्टिव और हेल्दी नहीं होगा, तब तक कोई भी करिकुलम या मॉड्यूल्स बच्चों की मानसिक स्थिति को ठीक नहीं कर सकता है। और जहां तक पीर प्रेशर का सवाल है, कंपटीशन इस हद तक बढ़ गया है, बच्चे खुद को कमतर समझने लगे हैं। इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स के नाम पर नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, जो बच्चों की क्रिएटिविटी को नहीं बल्कि उनकी एंजाइटी को बढ़ाते। बच्चों को लगता है कि अगर वो हर एक्टिविटी में बेस्ट नहीं है तो वे कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है हमें ये मानना होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वेलबींग की नहीं बल्कि मार्क्स, रैंक्स और अचीवमेंट्स की परवाह की जाती है। उनकी परफॉर्मेंस और परफेक्शन ये सब कुछ बन गया है। बच्चे एक रेस में दौड़ रहे हैं, ये रेस कब और कैसे खत्म होगी इसके बारे में किसी को नहीं पता। महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें उन पर सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन पर एक ऐसा दबाव डालना चाहिए जो उनकी मानसिक स्थिति को और भी नाजुक कर दे। अगर हम उनके वेलबींग के लिए कमिटेड हैं, तो हमें पेपर वर्क छोड़कर ग्राउंड रियलिटी को समझना होगा। हमें मार्क्स, रैंक्स और अचीवमेंट से परे जाकर उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। धन्यवाद। Ms. Kanpal, do you have any supplementary question? No, madam. Question number 105, Ms. Prabjot Kaur, please. माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा के ऊंचे दावे पर गुणवत्ता के प्रश्न में क्यों उठते भावे? क्या प्लेसमेंट्स की गारंटी है पक्की या डिग्री बस एक औपचारिक कागज की लकड़ी? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के माध्यम से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाने की बातें तो होती हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? कृपया स्पष्ट करें। Minister of Higher Education, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे सदन में उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका मिला है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा केवल एक डिग्री का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी युवाओं के स्किल्स और कैपेबिलिटी से लेस करने का साधन है जो उनके करियर्स और हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देते हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हमारे छात्र ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी पूरी तरह से तैयार हों। सबसे पहले हमारी सरकार ने हायर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हमने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA जैसे एक्टिविटीज को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य हायर एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस योजना के तहत हम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नई टेक्नोलॉजी, बेहतर फैकल्टी ट्रेनिंग और एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज को भी प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट्स ना दें, बल्कि वर्ल्ड क्लास नॉलेज भी प्रदान करें। इसके साथ ही छात्र की एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए हमने कई स्किल बेस्ड
हायर एजुकेशन में शामिल किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत हम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ साथ नए एज स्किल्स जैसे AI, डाटा साइंस और डिजिटल लिटरेसी को भी प्रमोट कर रहे हैं। यह स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज प्रदान करेगा। Our vision is that our students should not only hold degrees but be ready to contribute effectively in their chosen fields. माननीय सदस्यगण, यह भी सच है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारतीय छात्र विदेश जाने का सपना देखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टडी इन इंडिया और इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम जैसे इन एक्टिविटीज का शुभारंभ किया है। स्टडी इन इंडिया का उद्देश्य न केवल भारतीय छात्रों को वर्ल्ड क्लास नॉलेज देने का है, बल्कि फॉरेन स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट करने का है। आज की इकोनॉमी में इट्स नॉट इनफ टू जस्ट ग्रेजुएट, स्टूडेंट्स नीड टू बी इक्विप्ड विद द स्किल्स दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर। इसीलिए हम लगातार हायर एजुकेशन को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री लिंक्ड बनाते हुए स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट बना रहे हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार का लक्ष्य इनरोलमेंट बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां पर हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो सके। हायर एजुकेशन शुड empower our students to compete globally while staying rooted in their national and cultural identities. हम इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स अपने सपनों को साकार कर सके और अपने देश का गौरव बढ़ा सके। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होंगी तेरी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। धन्यवाद। Opposition member, please. देश के विकास के लिए यह सबको बताना होगा, हमें एजुकेशन के इस करप्शन को जड़ से मिटाना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, हायर एजुकेशन किसी भी समाज की प्रगति और विकास के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जब उसमें करप्शन की समस्या आ जाती है तो यह समाज की बुनियाद को कमजोर कर देती है। और इंडिया में करप्शन इन हायर एजुकेशन एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है, जो न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है बल्कि हमारे युवाओं के भविष्य को भी खतरे में डाल रही है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला, एडमिशन प्रोसेसेस में भ्रष्टाचार। जी हाँ, द करप्शन इन एडमिशन प्रोसेसेस। कई उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए रिश्वत या सिफारिश का सहारा लिया जाता है। इससे जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनके लिए अवसर खत्म हो जाते हैं। कई संस्थान तो ऐसे हैं जहां पर कैपिटेशन फी और डोनेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के माता पिता को लूटा जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि अधिकारियों की भर्ती में भी भ्रष्टाचार है। योग्य उम्मीदवारों की बजाय वे लोग चुने जाते हैं जिनके राजनीतिक संबंध होते हैं या जो लोग रिश्वत दे सकते हैं। क्या इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है? चलिए आपको बताती हूँ सबसे बड़ी समस्या, जो कि है फंड्स की। हमारी सरकार दावा करती है कि हम उनको फंड्स दें और वो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेगी, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? जो हम सरकार को फंड्स देते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों दे हम ऐसे फंड्स जिनका कोई सही इस्तेमाल ही ना हो? क्या फायदा है ऐसी फंडिंग का? ना सिर्फ ये बल्कि परीक्षाओं में भी भ्रष्टाचार आ गया है। परीक्षाओं में नकल एक ऐसा भ्रष्ट तरीका है जिससे कोई भी विद्यार्थी आसानी से किसी भी परीक्षा में पास हो सकता है। इसके लिए उसे करना क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पैसे देने होते हैं, जो कि कहलाती है रिश्वत। क्या सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है? सरकार तो रिसर्च और प्लानिंग में भी भ्रष्टाचार को ले आई है। जी हाँ, रिसर्च जो कि हायर एजुकेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, उसमें भी भ्रष्टाचार आ गया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिसर्च फंडिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी मेहनत के ही रिसर्च पेपर को हासिल कर लेते हैं। क्या इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है या हमारी सरकार कोई समाधान कर नहीं रही है? इस एजुकेशन के इस करप्शन को खत्म करने के लिए हमारी सरकार, समाज और प्रशासन तीनों को मिलकर काम करना होगा। सख्त कानून लागू होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और तकनीक में सुधार होना चाहिए। ना सिर्फ ये सब बल्कि नैतिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कोई भी ऐसा भ्रष्ट कार्य ना करे और वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। कि हायर एजुकेशन में करप्शन को खत्म करना एक बहुत ही कठिन लेकिन महत्वपूर्ण काम है और जब तक शिक्षा में पारदर्शिता और ईमानदारी नहीं होगी तब तक एक स्वस्थ समाज का निर्माण
समाधान करना तो असंभव ही है। Miss Prabjot, do you have any supplementary question? यस मैम। Please ask. सरकार उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट और क्वालिटी सुधारने के दावे तो कर रही है, लेकिन सरकार यह बताएगी कि दूर दराज के इलाकों में यह योजनाएं कैसे पहुंचेंगी। पश्चिम की हवा ने किया भ्रमित, मूल्यों के डोर को किया कमजोर, कैसे जगाए युवाओं में फिर से संस्कारों की अलग का जोर। माननीय नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा मंत्री जी, क्या आर्ट इंटीग्रेशन और वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स को ग्राउंड लेवल तक लाने के लिए कोई स्ट्रक्चर प्लान तैयार किया गया है और मॉडर्नाइजेशन को कल्चर वैल्यू के साथ संतुलित करने के लिए आपकी सरकार की दिशा क्या है? प्रभाव डिजिटल कक्षाओं में पढ़ते बच्चे अब ना देते स्कूलों को भाव, कुछ तो पढ़ते बड़ी शान से, कुछ को घेरे बैठे अभाव। शिक्षा के थे आसमान, वितरण करेगा भविष्य को बर्बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर मुझे बोलने का अवसर मिला है वह हमारी आने वाली पीढ़ी की नींव से जुड़ा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन और मोरल वैल्यू का संतुलन। हम सभी जानते हैं कि आधुनिकता और प्रगति का स्वागत करना आवश्यक है, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि हम अपने नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से दूर हो जाएं, बल्कि ट्रू प्रोग्रेस भी तभी संभव है जब अपने एथिकल और कल्चरल वैल्यू को साथ लेकर आगे बढ़े। सरकार ने इसी उद्देश्य से कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी एक और टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की आधुनिकता को अपना सके, तो दूसरी ओर अपने संस्कारों और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में जोड़ता है। We believe that education must go beyond academics और जीवन में मानवीय मूल्यों को जगह दे, ताकि हमारे बच्चे सिर्फ स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सके। हमारे विद्यालय में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और एथिक ट्रेनिंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। लाइफ स्किल्स, एम्पैथी और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी जैसे मॉड्यूल सब करिकुलम का हिस्सा है। हमारा मानना है कि ये वैल्यू सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इनका अभ्यास स्कूल के हर कोने कोने में होना चाहिए, ताकि बच्चे इन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना सके। आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे युवा कई कल्चर और वैल्यूज के एक्सपोजर में है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि मॉडर्नाइजेशन हमारे मोरल्स को वीकर ना करे बल्कि उन्हें और मजबूत बनाए। इसके लिए हमने कल्चरल प्रोग्राम, हेरिटेज एजुकेशन और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को भी करिकुलम में जगह दी है। उत्तराखंड जैसे राज्य जहां संस्कृति की गहरी जड़ें हैं, वहां स्थानीय लोक कला, संगीत और भाषा का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। इसी के साथ सरकार ने एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत जैसी पहल शुरू की है, जो बच्चों को अलग अलग राज्यों की भाषाओं से परिचित करवाता है, जिससे कि बच्चों के मन में देश की विविधता के प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है और वे समझ पाते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का अर्थ अपने मूल्यों का सम्मान आदर करना है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मॉडर्नाइजेशन और मोरल वैल्यू को एक साथ लेकर चलना ना केवल संभव है बल्कि आवश्यक भी है। सच्ची प्रगति वही होती है जहां आधुनिकता और नैतिकता एक दूसरे के पूरक बने। सरकार का यह प्रयास है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो उन्हें आधुनिक बनाए, लेकिन उनके साथ साथ उनके दिलों में संस्कारों का दीप भी जलाए रखे। धन्यवाद। Opposition member, please. संस्कार है कमजोर, उपेक्षाओं का विस्तार है, ऐसे में क्यों ना हो इन पीढ़ियों में टकरार है। यूज एंड थ्रो की वृत्ति का हो रहा विस्तार है, वस्तुओं सा मानक संग हो रहा व्यवहार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर मैं बात कर रही हूँ वह केवल मॉडर्नाइजेशन का ही नहीं बल्कि हम सबकी पहचान, मूल्य, संस्कृति पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपने बच्चों से जो मूल्य और संस्कारों को छीन रहे हैं, उस सबकी भरपाई कौन करेगा? क्या हम इस दौड़ के चलते अपनी जड़ों को पीछे छोड़ रहे हैं? यह मॉडर्नाइजेशन किस काम का अगर ये हमारे समाज की नींव को हिलाकर रख दे। हमारी मौजूदा सरकार मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कई सारी योजनाओं का निर्माण तो करती है, लेकिन इन योजनाओं में कहीं पर भी हमारे मूल्य और संस्कारों और नैतिकताओं का अंश भर भी नजर आता है आपको। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी बच्चों के दिमाग में एथिक्स, रिस्पेक्ट, कंपैशन जैसी चीजें नहीं भर सकती। आज हम अपने बच्चों को कोडिंग और AI तो सिखा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोडिंग और AI बच्चों को, जैसे बच्चे जो कोडिंग और AI सीख रहे हैं, वह जब अपने एल्डर से बात करते हैं तो वो रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट के बेसिस तक को भूलते जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, हमारे समाज में अपराध, अवसाद, आत्मकेंद्रिता जैसी चीजें कितने वक्त से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन चीजों पे तो ध्यान नहीं दिया जाता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में मोरल वैल्यूज का हिस्सा जोड़ने की बात तो की गई है, लेकिन अगर इसका ग्राउंड लेवल पर यहाँ देखा जाए तो ये सिर्फ सिलेबस के कुछ पन्नों तक ही सीमित है। अगर हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में मोरल वैल्यूज और एजुकेशन के नाम पर एक आध चैप्टर्स पढ़ा देने से क्या वो बच्चे एथिकल और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बन जाएंगे? नहीं। हमारी शिक्षा में नैतिकता कहाँ है, संवेदनशीलता कहाँ है? हम क्या एक आध क्लास बच्चों में वो वैल्यूज भर सकती है जो उन्हें इंसानियत का असली महत्व समझा सके? और आज के वक्त में हम अपने बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड में इतना इमर्स कर रहे हैं कि वो रियल वर्ल्ड और ह्यूमन रिलेशनशिप्स में अंतर नहीं समझते। क्या यही हमारी शिक्षा प्रणाली है जो NEP में दर्जा की गई है? नहीं। हम आज मैडम स्पीकर हमारे यूथ को सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसी चीजों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है जहां उनके लिए उनका कंटेंट और फेम, उनकी वैल्यूज और रिलेशनशिप से ज्यादा मैटर करता है। क्या यही हमारी वैल्यूज है? क्या यही हमारे एथिक्स है जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं। आज लेकिन क्या हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ये सिखाया जाता है कि एथिकल प्लेटफॉर्म्स में हमारे बिहेवियर और कैसे रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए? नहीं। अब तो बच्चों के लिए उनके लाइक्स और फॉलोअर्स ही उनकी मेन आइडेंटिटी बन गए हैं। अगर हम अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, लेकिन हमारी वैल्यूज, हमारे एथिक्स और हमारे संस्कारों से, क्योंकि हमारी पहचान हमारे वैल्यूज से है, ना कि वेस्टर्न ट्रेंड से। बच्चों को कल्चरल वैल्यूज के नाम पर कुछ चैप्टर्स पढ़ा देने से क्या वो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे एथिकल बिहेवियर्स को कुछ ही चैप्टर्स पढ़ाने से नहीं सिखाया जा सकते। उनकी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। हमारी वैल्यूज हमारी इंपॉर्टेंट है, हमारी वैल्यूज हमारे मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत बड़ा महत्व दिखाती है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे एथिक्स, हमारे बिहेवियर से है, ना कि वेस्टर्न ट्रेंड्स के फॉर्मेट से। आज स्कूल में हमारे बच्चों को वर्कशॉप्स और इवेंट्स के लिए तो बुलाया जाता है, लेकिन उनमें मूल्य शिक्षा से ज्यादा तो उसका दिखावा किया जाता है। क्या यही हमारी मॉडर्नाइजेशन का प्रचार है? मैडम स्पीकर, आज हमारे स्कूल्स में कई सारी चीजों का निर्माण तो करते हैं, कई सारी वर्कशॉप्स और इवेंट्स भी रखे जाते हैं, लेकिन उनका क्या फायदा जब बच्चों को उस चीज का ज्ञान ही नहीं मिल पा रहा है? हमारे स्कूल में आजकल बच्चों को एथिकल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स के बारे में नहीं बताया जाता है। क्यों? सिर्फ कोडिंग और AI जैसी चीजों के लिए ही बच्चों को स्कूल्स का एडमिशन दिया जाता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज पे है, ना कि वेस्टर्न मीडिया के ट्रेंड से। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस पर हावी पड़ रहा है। हमें हमारा मॉडर्नाइजेशन चाहिए, क्योंकि ये हमारी जड़ों की नींव से बांध के रखता है। जब तक संस्कृति है तब तक विकास है, बिना संस्कृति मानवता का विनाश है। धन्यवाद। Ms. Nikita, do you have any supplementary question? No, madam. Thank you. Question number 107, Chitman call, please. माननीय भ्रष्टाचार निवारण मंत्री जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट्स का खेल पैसा बोलता है, स्टूडेंट्स की मेहनत फेल। क्या शिक्षा भी बन गई बाजार जहां सपनों की बोली लगती बारंबार? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड की सिफारिशों के बावजूद क्या प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई कानून बनाया गया है, और इस दिशा में अब तक कोई प्रगति हुई भी है या नहीं? Minister of Anti-Corruption, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस मंच पर मुझे गर्व है कि मैं सरकार के उस प्रयास का प्रतिनिधित्व कर रही हूं जो करप्शन इन एजुकेशन जैसे गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए निरंतर कार्यरत है। सरकार ने शिक्षा को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में, जहां पर हर परिवार अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं, हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत शिक्षा को हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया है। अंडर दिस एक्ट हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया गया है, ताकि हर बच्चा बिना किसी बाधा के स्कूल जा सके। आज शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार ने कई स्ट्राइडेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी लागू किए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है।
शिक्षा का डिजिटलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी इन्हांसमेंट भी सुनिश्चित किया गया है ताकि भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री, क्वालिटी लर्निंग मटेरियल भी उपलब्ध करवाई जाए। डिजिटल युग में सरकारी प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, दीक्षा, ई पाठशालाओं ने छात्रों के लिए फ्री और एक्सेसिबल एजुकेशन भी उपलब्ध करवाई है। अब उत्तराखंड के हर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा इन्हीं माध्यमों से आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हुए कोचिंग इंडस्ट्रीज को नियमित करने के लिए भी हमारी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पर क्या यह कदम सही है? अगर आज भी हम अपने देश में देखें तो हर 10 कदम पर हम एक कोचिंग सेंटर देख सकते हैं, तो फिर क्या यह नियमित हो रहे हैं? क्या इसका जवाब है आपके पास? पहले भी आपसे कहा गया है कि सांसद की गरिमा बनाए रखें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जी हाँ, इसका उत्तर मेरे पास है। रेगुलेशंस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कई ड्राफ्ट पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनाई रखी जा सके और कोई भी संस्थान किसी भी अभिभावकों के साथ गलत तरीके से लाभ ना उठा सके। यहाँ तक कि स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड की प्रक्रिया भी अब डिजिटल हो चुकी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप्स अब सीधा छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाती है। माननीय, हमारी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है that we are committed to fighting corruption at every level of education system। हमें पता है कि समाज को सशक्त करने का सबसे मजबूत हथियार शिक्षा है और इसे सशक्त करने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का क्षेत्र भ्रष्टाचार से मुक्त हो और हर छात्र को समान अवसर प्राप्त हो। As we know, education is the key to prosperous society and our government is working hard on it. धन्यवाद। Opposition member, please. कर रही है पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जहाँ जहाँ होगा भ्रष्टाचार, लोकतंत्र पर होगा कड़ा प्रहार। भ्रष्टाचार है एक बीमारी, दंडित हो हर भ्रष्टाचारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके सामने शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त उस भ्रष्टाचार पर बात करना चाहती हूँ जिसने हमारे देश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। करप्शन इन एजुकेशन ये केवल एक मुद्दा नहीं बल्कि हमारे समाज की नींव को हिला देने वाला एक खतरा बन चुका है। उत्तराखंड जैसे राज्य जहाँ शिक्षा को एक नई दिशा देने का सपना देखा जाता है महोदया, आज वही शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है। आज हमारे देश के कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों की आशाओं का दोहन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स हैव टर्न्ड एजुकेशन इनटू अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। ये संस्थान केवल लाभ कमाने की मशीन बन गए हैं जो विद्यार्थियों के सपनों को बेचते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जहां गुणवत्ता की जगह फीस का महत्व बढ़ गया है। कोचिंग पेरेंट्स आर पेइंग lakhs hoping for quality education, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? मन में असुरक्षा और भविष्य के प्रति अनिश्चितता। ऐसा क्यों है? इन संस्थानों में सेम कोर्सेज के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग फीस वसूली जाती है। क्या यही शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है? आज शिक्षा का मंदिर एक व्यापार का अड्डा बन गया है। जिन संस्थानों को नॉलेज का टेम्पल होना चाहिए था, वहां पैसों का खेल हो रहा है। बच्चों को प्रवेश परीक्षा में सफल होने के नाम पर अत्यधिक फीस और एक्सक्लूसिव मटेरियल्स के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्य जहां माँ बाप अपनी जमीन, अपनी जमा पूंजी बेचकर अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखते हैं महोदया, आज वही के शिक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार के शिकंजे में है। क्या यह उचित है? क्या यह उचित है? हमें सोचना होगा, is this the education system we envisioned? हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो पारदर्शिता और ईमानदारी पर आधारित हो, जहां हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के अपने सपनों को पंख दे सके। शिक्षा में पारदर्शिता का अभाव केवल कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं है। कई बार सरकारी योजनाएं भी इसका शिकार होती हैं जो शिक्षा का अधिकार सब तक पहुंचाने में विफल रहती हैं। हमें मजबूत नियम और कठोर नीति सुधारों की जरूरत है ताकि शिक्षा एक बार फिर से एम्पावरमेंट का माध्यम बने, ना कि व्यापार का साधन। इसलिए आज मैं आप सबके सामने इस संसद से अनुरोध करती हूँ कि हम एक ऐसा तंत्र बनाएं जहां शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ हो बिना किसी भेदभाव के। एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज और हमें इस अधिकार को सुरक्षित रखना है। आइए हम मिलकर शिक्षा को एक बार फिर से ज्ञान का मंदिर बनाएं और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर दें। Ms. Chitwan, do you have any supplementary question?
No, madam. Question number 108, Mr. Pratik, please. माननीय रोजगार मंत्री जी, पूर्ण शिक्षा प्राप्ति के बाद एक युवा का अगला कदम रोजी रोटी कमाना ही होता है, परंतु जिस तरह बेरोजगारी आसमान छू रही है, why the job opportunities feel like an endless chase between Tom and Jerry, जहां आप चाहे कितना भी टेस्ट दौड़ लीजिए, वह प्राइस आपके हाथों से फिसलकर दूर चला ही जाता है। माननीय रोजगार मंत्री जी, क्या सरकार यूथ को रियल एंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देने का कोई ठोस कदम उठा भी रही है, या हम बस ये मान ले कि जॉब फॉर ऑल का वादा एक और वह चमत्कारी वादा है जो कभी पूरा नहीं होगा? आखिर कब तक युवा इन नॉन एग्जिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज और रिसाइकल्ड वादों का इंतजार करेंगे? आप क्या सोच रहे हैं माननीय रोजगार मंत्री जी? आर वी सपोज टू ट्रस्ट कि जॉब मार्केट अपने आप फिक्स हो जाएंगे, या कोई कंक्रीट स्टेप लिया गया है जिससे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की इस एंडलेस साइकिल से बाहर निकले? और कहीं यह स्टेप आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की तरह तो नहीं, जो निकलते ही विकेट आउट हो गए थे? Minister of Employment Opportunity, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन के सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने जा रहा हूं जो हमारे देश के युवाओं की आकांक्षाओं एवं उनके उज्जवल भविष्य से जुड़ा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। यह सच है कि शिक्षा का सही महत्व तभी पूरा होता है जब हमारे युवा अपनी शिक्षा एवं अपनी क्षमताओं का उपयोग कर अपने सपनों को संपन्न कर सके। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा युवा है और हमारी गवर्नमेंट ने इन युवाओं को बेटर स्किल्स एंड बेटर नॉलेज के साथ हर एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देने का हर संभव प्रयास किया है। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कई सारी नीतियां एवं कई सारी स्कीमें निकाली है। उन नीतियों में सबसे पहली और सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEGP। इस योजना का उद्देश्य ही युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को बिजनेस स्टार्टअप्स और लोन्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा ताकि वे खुद के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सके। इस नीति का इनिशिएटिव केवल नौकरियां मांगने तक सीमित नहीं है जी, बल्कि इस नीति का इनिशिएटिव दूसरों के लिए नौकरियां देने की सोच भी विकसित करता है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स ने हमारे युवाओं को इंटर्नशिप में कदम रखने के लिए प्रेरित किया है। आज हमारे भारत देश में 75,000 से ज्यादा इंटर्नशिप रजिस्टर्ड है और यह संख्या हर साल बढ़ रही है। दिस शोज दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमी वेयर यंग माइंड्स आर क्रिएटिंग जॉब्स, नॉट जस्ट सीकिंग देम। और हमारी सरकार का यह विश्वास है कि अगर हमारे युवाओं को सही मार्गदर्शन और सही सपोर्ट मिले तो आने वाले सालों में हमारे युवा खुद ही रोजगार सृजन करना चालू कर देंगे। माननीय सदस्यगण, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इस योजना का उद्देश्य ही युवाओं को इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल से दूर करना है। इस योजना के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट ही भविष्य की नींव है, जिसके लिए 2025 तक हमारी गवर्नमेंट ने 40 करोड़ से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है और इस ट्रेनिंग में उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी दी जाएंगी जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करेगी। आज के डिजिटल और टेक बेस्ड जमाने में डिजिटल और टेक बेस्ड जॉब्स का महत्व बढ़ा जा रहा है। इसीलिए डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के तहत हमारे युवाओं को डिजिटल सेक्टर और IT सेक्टर जैसी जगहों में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हमारा उद्देश्य केवल ट्रेडिशनल जॉब्स पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि नए सेक्टर जैसे AI, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी में भी कदम रखना है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने बड़े पैमाने पर जॉब अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट किया है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का सीधा प्रभाव हमारे युवाओं को हुआ है, जिन्हें अपने ही क्षेत्रों में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार पे विशेष ध्यान दिया है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मगनरेगा, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में भी जॉब्स दी जाएंगी और आज यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए जॉब्स का सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल जॉब्स देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां युवा के पास एम्प्लॉयबल स्किल्स और जॉब्स भी प्रदान कर सके। As we all know that youth empowerment is essential for a prosperous India और हमारी सरकार इसके लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अंत में
मैं ये कहूंगा कि हमारी सरकार हर एक युवा को अपने टैलेंट और अपने हार्ड वर्क के हिसाब से अपने फ्यूचर को क्रिएट करना चाहती है। धन्यवाद। अपोजिशन मेंबर प्लीज। खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं, शुभकामनाएं दो, ये मौजूदा सरकार का चमत्कार है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज मैं जिस मुद्दे पर बोल रही हूँ वह इस देश के युवाओं की आशाओं का नहीं बल्कि उनके टूटे हुए सपनों का मुद्दा है, बेरोजगारी। हमारे नेता रोजगार सृजन की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है इन वादों के पीछे एक ऐसा होलो सिस्टम है जिसने हमारे युवा पीढ़ी के भरोसे को तोड़ा है। हर साल हजारों बच्चे कॉलेज और विश्वविद्यालय से डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन जॉब्स कहाँ हैं? हम बार बार सुनते हैं कि देश में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन क्या यही यूथ अब सिर्फ स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट बनकर रह गया है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जैसे फैंसी इनिशिएटिव्स की बातें हर जगह की जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पर इनका असर कहाँ है? क्या स्किल्स देने से ही जॉब्स मिल जाती हैं? यह सब सिर्फ एक और पॉलिटिकल हेडलाइन बनकर रह जाती हैं। स्किल्स तो आ जाती हैं, पर जॉब्स का क्या? जॉब्स की तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। सरकार दावा करती है कि युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि दिन भर दिन बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को बढ़ावा देगा, लेकिन आप हमें ये बताइए कितनी न्यू इंडस्ट्रीज, कितनी न्यू फैक्ट्रीज बन रही हैं और कितनी न्यू सस्टेनेबल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? बड़ी बड़ी बातें, लेकिन रोजगार का एक्चुअल ग्राउंड तो जीरो है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEGP से लोन्स दिए जाने की बातें कही जाती हैं, लेकिन इस बात का क्या? छोटे शहरों, रूरल एरियाज में तो इन लोन्स तक पहुंच पाना ही कितना मुश्किल है, ये कोई नहीं देखता। क्या लोन्स देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? हमारे युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन किस एनवायरमेंट में और कहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे? सरकार बार बार कहती है कि वह रोजगार के लिए रूरल स्कीम्स पर काम कर रही है, लेकिन अगर मनरेगा जैसी स्कीम के तहत मिलने वाले जॉब्स ही अब रोजगार का डेफिनेशन बन गए हैं, तो कितने यूथ इसे अपने सस्टेनेबल करियर का ऑप्शन मानेंगे? क्या इस देश के भविष्य को, इन एडुकेटेड यूथ्स को सिर्फ मनरेगा के सहारे छोड़ देना ही समाधान है? माननीय सदस्यगण, हमारे देश के हर कोने में युवा आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, यह बताने के लिए कि वह सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं है। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस युवा शक्ति को हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं, आज उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। वाह वाह गवर्नमेंट जॉब्स वालों की होती है, बेरोजगारों की नहीं। अंत में मैं बस यही कहूंगी, ये सिस्टम केवल झूठे वादों का, हॉलो पॉलिसीज का और करप्शन का पर्याय बन चुका है। हमारी युवाओं को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और स्लोगन्स की नहीं, बल्कि रियल जॉब्स और रियल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को बस कुछ योजना और वादों से नहीं, बल्कि ठोस और ईमानदार प्रयासों से हल करना होगा। Mr. Pratik, do you have any supplementary question? यस स्पीकर मैडम। Please ask. माननीय रोजगार मंत्री जी, आपने बड़े शान से स्टार्टअप इंडिया की तारीफ तो कर दी, परंतु इसके आगे का क्या? मान लीजिए, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, परंतु मान लीजिए कि आपने इसी स्कीम के अंदर एक स्टार्टअप शुरू किया और वो फेल हो गया, तो आपकी सरकार वो लोन के पैसे कैसे वसूलेगी? अब ये मत कहना कि वो आपके घर में घुस के आपसे दंगा करके वो पैसे निकालेगी। Concerned minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चुनौती का हल भी हमारी सरकार ने निकाला है। हमारी सरकार ने इस चुनौती के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाले हैं। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में युवाओं को बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड हर एक बेसिक नॉलेज दी जाएगी, ताकि उनका जो बिजनेस हो वो फेल होने की कम से कम पॉसिबिलिटीज हो और एक युवा अपने लिए रोजगार सृजन कर सके और दूसरों के लिए भी रोजगार सृजन कर सके। धन्यवाद। No supplementary question, please. Honorable members, as we approach to the conclusion of today's session, we will now proceed with presentation, discussion and voting on the proposed bill. Now I request the Minister of Education Policy, please stand up and present the
bill for consideration. Honorable Speaker and respected member of this House, आज मैं आपके समक्ष पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनमेरिड मील्स 2024 बिल प्रस्तुत करती हूँ. This bill addresses one of the most pressing issue faced by our education system today. This measure not only jeopardizes the future of the youth but also undermines the integrity of our institution. I would allow me to elaborate the key aspects of this bill. First, prevent leaks and malpractices. A strict provision against leaks and malpractices would be taken, and 10 years imprisonment for those who found guilty and 1 crore penalties to be taken. Second, technological surveillance and monitoring. Establishment of technological surveillance for monitoring the real-time exams. Second, use of AI-based system to detect and prevent the cheating and computer-based examinations. Third, fair access to opportunities. Exams will now be conducted in 13 regional languages, including our plan and expanding it to all those 24 languages around the diverse region. Transparent recruitment process, undergrounds and with full of computer-based examinations. Now, what is the need for this bill? हमें इस बिल की क्यों जरूरत है? माननीय सदस्यगण, हम सब ने लीक्स, नकल, घोटालों के कई उदाहरण देखे हैं, जिनमें से राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम स्कैम 2022, सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम 2022 और SSCGL एग्जाम 2017 शामिल हैं. ये घटनाएं न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके सारे सपने चूर-चूर कर देती हैं. But this bill aims at ensuring and protecting the merit of the youth and aspiring that their aspirations are not crushed by the corrupt activities. ये बिल केवल कानून नहीं, ये हमारे युवाओं के भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है. I urge all the members sitting here to support this bill for the stronger and fairer India. धन्यवाद. Now I invite the opposition member Ms. Kamaljeet Kaur to share her views on the proposed bill. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन इसकी असलियत इसके शब्दों में कहीं खोई हुई है. पेपर लीक्स रोकने की बात कर रहे हैं ये, लेकिन क्या सरकार ने माना है कि पिछले 5 सालों में 12 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए? क्या यह बिल उन गिरोहों पर काबू पा सकेगा जो हमारे सिस्टम के हमेशा एक कदम आगे रहते हैं? रीजनल लैंग्वेजेस में परीक्षाएं करवाने की बात अच्छी की गई है, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि उन कैंडिडेट्स के लिए स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट और रिसोर्सेज कहां से उपलब्ध होंगे? क्या यह बिल समानता को और बढ़ाएगा या फिर और जटिलताएं पैदा करेगा? और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के भरोसे सिस्टम चलाने की बात की गई है, लेकिन पिछले साल AI बेस्ड सिस्टम के होते हुए भी नीट और CUT में इरेगुलरिटीज सामने आई. मैं इस बिल का विरोध करती हूँ क्योंकि यह बिल सिर्फ एक दिखावा है. जी हाँ, ये दिखावा है. Honorable Opposition Minister Ms. Jasmandeep, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल एक सपना बेच रहा है जो कि हकीकत से कोसों दूर है. हर साल हर बार यही वादा होता है, लेकिन क्या वादे के साथ जवाबदेही भी होगी? पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि कैसे ये पेपर लीक और कई घोटालों ने हमारे युवाओं को एक मानसिक तनाव में डाल दिया है. मेरा आप सभी से यह सवाल है कि क्या यह बिल उन छात्रों के लिए है जो आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का जिक्र बुरा नहीं, लेकिन अगर सिस्टम में बैठे लोग ही भ्रष्ट हैं तो ये टेक्नोलॉजी क्या कर लेगी? सपने मत दिखाइए, सच्चाई पर काम कीजिए. मैं इस बिल का सशक्त विरोध करती हूँ. धन्यवाद. I now request to the Minister of Education Policy please respond to the concerns raised. Honorable Speaker and respected members, विपक्ष ने जो चिंताएं उठाई हैं, उनका समाधान इस बिल में पहले से ही दिया गया है. स्पीकर मैडम, मैं विपक्ष से कहना चाहूंगी, नजर को बदला जाए तो नजारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो इतिहास भी बदला जा सकता है. सर्वेलेंस कमेटी और AI बेस्ड ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करेंगे. रीजनल लैंग्वेज में आयोजित योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अनऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए सख्त सजाएं और इसका प्रावधान इस बिल में रखा गया है. यह बिल एक कदम है, लेकिन यह कदम हमारे युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा कदम है. आप सभी
मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस सदन में जो बहस सुन रहा हूँ उससे एक बात तो साफ है, हमारे कुछ साथी केवल शब्दों का खेल खेल रहे हैं। These opposition members claim this bill has flaws, but let me ask them, क्या आप सब जानते भी हैं कि इस देश के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है या आपको बस फालतू के मुद्दे उठाने हैं? This Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024 is not just a piece of legislation, it is a lifeline for millions of students who have suffered due to corruption, paper leaks and scams. यह बिल उन युवाओं की आवाज है जिनके सपने उन घोटालों के भेंट चढ़ गए हैं। And yet, what do we hear in these houses? Half-baked objections, baseless criticisms, and no real solutions. Opposition members claim that talk about ground realities. Well, let me remind you of the real ground realities. Rajasthan eligibility exams for teachers, paper leak. SSC CGL exam scam, massive irregularities. NEET and CUET exams, students suffered and were forced to reappear. Did any one of you propose solutions back then? नहीं, क्योंकि आपको तो केवल विरोध करना आता है। And let me address the most ridiculous claim that I have heard today, कि यह बिल एक दिखावा है। I want to ask, who else has brought stricter penalties for organized cheating? कौन है जिसने टेक्नोलॉजी सर्विलेंस कमिटीज लागू करने का सुझाव दिया? Is it the opposition? No, it is the government. This government believes in सुरक्षा, सुविधा और सम्मान for every citizen. Through this bill, हम पेपर लीक्स को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड गैंग व भ्रष्ट तत्वों पर सख्त कार्रवाई करेंगे और रीजनल ऑप्शन से हर छात्र को सम्मान अवसर मिलेगा। And yet, opposition members are more interested in playing politics. आपने कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव तो नहीं दिया, केवल बाधाएं डाली है। And let me tell you, this government does not work for politics. हम देश के युवाओं के लिए लड़ते हैं और उनके लिए काम करते हैं और उनका भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। Honorable Speaker, I urge you to pass this bill without any further delay. और यह बिल हर युवाओं का अधिकार है। Honorable Speaker, I urge you to pass this bill without any further delay. To my crisis, remember, ना तो ये सरकार रुकी है, ना तो ये सरकार रुकेगी। अगर देश के लिए एक कदम लेना है, तो वो कदम आज ही लिया जाएगा। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister. Now we will proceed with voting on the proposed bill, the Public Examination Bill 2024. All those in favor, please raise your hand and say yes. Yes! All those opposed it, please raise your hand and say no. No. Thank you. So, as the majority have voted in the favor of the bill, hence the Public Examination Bill is hereby passed. With this, I officially conclude today's Youth Parliament 2024 session with my heart filled with gratitude and honorable prime and thanking you all for your valuable contribution and spirited debates. Let's us come together and work for a fairer and brighter future. Thank you and Jai Hind. Sit down, everyone.